Assalamu alaikum. In today's session, we will be discussing about the easiest and quickest way to calculate electric dipole moment. So, electric dipole moment, जिसको हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि what is the basic definition and how conventionally we are going to solve a question. Then we will use the shortcut method or the smart method to do it very faster. So first of all, if we have a discrete set of particles, charged particles, say for example we have a discrete system of charged particles, and I have to see what is its dipole moment. Say for example this is the ith charge and the position vector for that charge is q ri. This is the position vector, right? So अगर मेरे को dipole moment लिखना है इस सिस्टम का, तो dipole moment can be written as summation qi into ri vector. So for if we do this process on the entire system, we are going to get the dipole moment of the system. To make it easier, for two particle system, we are going to see for two particle system, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, दैट से फॉर एग्जांपल माइनस क्यू, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा चार्ज पार्टिकल है से फॉर एग्जांपल प्लस क्यू. तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर है आर नेगेटिव, इसका पोजीशन वेक्टर है आर पॉजिटिव. से फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज योर डी, this is a d vector. So you are going to apply this formula, P is equal to summation qi ri vector. So what you are going to get, so first let me take this charge, it's minus q, into this its position vector. This ri is the position vector of that charged particle, so that will be r minus, then plus this charge, that is q, and its position vector is r subscript plus, right? So what you do is that you take q common. So if you take q common, you are going to get essentially r positive minus r negative. So what is r positive minus r negative? If you see the triangle law, r negative plus d is going to be equal to r positive. So what's d? So it's essentially r positive minus r negative. सो यही तो यहाँ पे आ रहा है, तो व्हाट यू कैन राइट इज दैट यू राइट q इंटू डी. यही आप पढ़ते हो 12th क्लास में जब आप डाइपोल मोमेंट पढ़ते हो ना, यू डू p इज इक्वल टू q इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, बट दिस इज मोर जनरल, राइट? नाउ इफ यू हैव कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, सी फॉर एग्जाम्पल द चार्ज सिस्टम इज कंटिन्यूअस and here it is say minus charges and here are positive charges, okay? Assuming this is an insulating body. So my claim is that ki how will you calculate, first of all how will you calculate its dipole moment. So dipole moment निकालने के लिए you may have to do integration, because this is a continuous charge, you have to choose a small element. So small element is dq, then q के बदले में dq लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा r. इसको आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट ओवर द एंटायर सिस्टम, देन यू विल गेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. बट द क्यूट मेथड इज दैट अगर आपको इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा, सपोज इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां है और इस पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां है, सपोज ये टोटल चार्ज सपोज q है और ये टोटल चार्ज माइनस q है, और ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इन सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी सपोज d है, तो आप सीधे लिख सकते हो इसका आंसर p विल बी इक्वल टू चार्ज q इंटू सेंटर ऑफ मासेस के बीच की दूरी d. दिस इज द डायरेक्ट आंसर. सो qd आप लिख सकते हो, बट d इज द सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ मासेस. नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक क्वेश्चन को हम लेते हैं. विल टेक अ क्वेश्चन, सपोज दिस इज अ रिंग, एंड इस रिंग में क्या है कि इसमें जो अपर हाफ है उस पे मान लो पॉजिटिव चार्जेस है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? इस पे पॉजिटिव चार्जेस है, और जो नीचे वाला साइड है इसका, लेट्स से इस पे नेगेटिव चार्जेस है, हियर आर नेगेटिव चार्जेस.
लेट्स से द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स लैम्डा, हियर इट इज माइनस लैम्डा, एंड सपोज द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज आर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सो हाउ विल यू डू इट कन्वेंशनली? फर्स्ट कन्वेंशनली आप कैसे करेंगे? नॉर्मल मेथड से, देन वी विल सी, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको यूज करके इसको हम बहुत फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो कन्वेंशनली क्या है तरीका करने का इसको? कन्वेंशनली आप क्या करेंगे कि यू विल डू वन थिंग, आप किसी एंगल थीटा पे जाके डी थीटा की एक आर्क ले लो, डी थीटा की आर्क काटो आप, तो यहां पे थोड़ा सा चार्ज मिलेगा आपको। सिमिलरली आप नीचे जाएंगे, नीचे वाले हाफ पे, इसी एंगल थीटा पे, इसी एंगल थीटा पे, और डी थीटा की आप नीचे भी एक आर्क को काटोगे यहां पे। ये दो चार्जेस जो है यहां पे, मतलब जो ऊपर वाला टुकड़ा बन गया यहां पे और जो नीचे वाला टुकड़ा है, इस चार्ज को आप बोल सकते हो डी क्यू और इसको बोल सकते हो माइनस डी क्यू। इसमें स्मॉल चार्ज आएगा ना इस टुकड़े में, डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो यहां पे एक छोटा सा चार्ज मिलेगा, नीचे एक छोटा सा चार्ज मिलेगा, दिस विल फॉर्म ए सिंपल डायपोल। तो अगर ये आर है, ये रेडियस, तो आप मुझे बता सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये वाली, दिस विल बी आर साइन थीटा। आप चेक कर सकते हो इस ट्रायंगल में आर साइन थीटा, और ये भी होगा ना आर साइन थीटा। सो अगर मुझे ये छोटा सा डायपोल मोमेंट लिखना होगा, डीपी, छोटा सा डायपोल मोमेंट, दैट्स गोइंग टू बी, ऊपर है प्लस डी क्यू, नीचे है माइनस डी क्यू, आई एम गोइंग टू राइट इट एज डी क्यू, सिंपली चार्ज इनटू सेपरेशन, इनके बीच में सेपरेशन कितना है, दैट इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, दैट इज 2 आर साइन थीटा, राइट जी। नाउ अगर आपको पूरा निकालना है डायपोल मोमेंट पूरे सिस्टम का, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो आपको पी किसके बराबर मिलेगा? इंटीग्रेशन डी क्यू 2 आर साइन थीटा, राइट। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज डी क्यू नाउ? व्हाट इज दिस डी क्यू? अब डी क्यू, ये लंबाई कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी बराबर, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, एंड इफ यू हैव टू फाइंड द चार्ज डी क्यू, सो चार्ज कितना होता है? लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा को जिस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं उसका चार्ज मिलेगा, तो लैम्डा है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लेंथ है आपकी आर डी थीटा, सो ये आपको डी क्यू मिल जाएगा। सो अगर हम यहां पे डी क्यू के बदले में वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? सो वी आर गोइंग टू गेट लैम्डा आर डी थीटा, दिस इज डी क्यू इंटू 2 आर साइन थीटा। सो जो कॉन्स्टेंट है उनको बाहर निकालेंगे, आर को बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, आर इंटू आर हो जाएगा यहां पे आर स्क्वायर, लैम्डा बाहर, आर स्क्वायर बाहर और 2 बाहर, तो अंदर क्या बच गया? साइन थीटा डी थीटा। अब आप कहां से कहां ले रहे हो? आप ले रहे हो यहां पे एलिमेंट, यहां पे एलिमेंट, यहां पे एलिमेंट, यहां पे एलिमेंट, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, यानी कि सबसे पहले आप यहां से शुरू करेंगे, थीटा 0 होगा और घूम के आप जब यहां पहुंचोगे तो थीटा 180 हो जाएगा, दैट मीन्स यू आर गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई। सो व्हाट इज डायपोल मोमेंट नाउ? सो पी विल बी इक्वल टू, it will be equal to 2 lambda r square, integration of sin theta is minus cos theta from 0 to pi. So this will be equal to 2 lambda r square. अब ये माइनस एब्जॉर्ब करने के लिए लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे, cos 0 पहले लिखेंगे, cos 0 होता है 1 माइनस cos ऑफ पाई होगा -1, तो ये बनेगा +1. सो हाउ मच इज द आंसर? इट इज 4 लैम्डा इंटू आर स्क्वायर. दिस इज द डायपोल मोमेंट, राइट. ये है कन्वेंशनल मेथड, दिस इज द नॉर्मल मेथड जैसे हम करते हैं. बट अगर हम इसी को शॉर्टकट मेथड से करेंगे, शॉर्टकट मेथड मैंने क्या बताया अभी, जो क्यूट मेथड है, दैट इज यू हैव टू सी कि ये जो चार्ज है पूरा पॉजिटिव, ये चार्ज लेना पड़ेगा और इस हाफ रिंग और इस हाफ रिंग के सेंटर ऑफ मासेस की दूरी देखनी पड़ेगी. सो लेट्स सी दैट. ये इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं अब. व्हाट विल आई डू इज कि आई एम गोइंग टू यूज द क्यूट मेथड नाउ. ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर है और यहां पे नेगेटिव है. अगर इसकी रेडियस है r, तो हाफ रिंग जो होती है ना उसका सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है? अगर इसकी बेस ये है तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होता है? सेंटर ऑफ मास होता है 2r डिवाइडेड बाय पाई. हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r डिवाइडेड बाय पाई, ये आपने पढ़ा होगा. तो इस पूरे चार्ज को मैं मान सकता हूं, ये जो पूरा रिंग है ना हाफ रिंग, इसका पूरा चार्ज मैं मान सकता हूं इसके सेंटर ऑफ मास पे. ये पूरा चार्ज मैं मान सकता हूं इसके सेंटर ऑफ मास पे. कितना ऊपर मान सकता हूं? 2r बाई पाई. और कितना चार्ज है ये टोटल? ये टोटल चार्ज कितना है? व्हाट इज दिस टोटल चार्ज? सो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाफ लेंथ कितना होता है? पाई आर. तो इट विल बी लैम्डा इंटू पाई आर. टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, आधा हो जाएगा पाई आर. अब नीचे भी देखूंगा ना, इस हाफ रिंग की वजह से जो है उसका भी सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा?
2r/π होगा, और यहां पे भी कितना चार्ज होगा, माइनस लैम्डा इंटू पाई आर। अगर मैं इसको q बोलूंगा तो यहां पे माइनस q है चार्ज, राइट जी। तो इक्वलेंट अपोजिट चार्जेस है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो सीधे आंसर क्या आएगा, डायपोल मोमेंट सीधे लिखा जाएगा चार्ज दैट इज लैम्डा पाई आर, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मासेस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मासेस, दैट इज 2r/π plus 2r/π is 4r/π. So pi is gone. So what is the answer? That is 4r square into lambda. So you can see, आप इसको ज़बानी भी कर सकते थे, 4r square lambda प्रीवियसली क्या था हमारा, 4r square lambda। तो इंटीग्रेशन, इसमें नो इंटीग्रेशन, और वही आंसर हमने निकाल लिया सीधे। So that was the shot of the day. Thank you very much.